So this is lecture number 9. So we have completed so far our topics of numerical differentiation and numerical integration. And today we shall consider the solution of system of algebraic equations. So for that we will have some knowledge of matrix theory, and that is what we are going to discuss about. So I will begin with the definition of matrix. So a matrix is actually referred as a rectangular array which means that it is basically a rectangular arrangement of elements from where they are coming, maybe real, maybe complex. So wherever they are coming, they are referred as matrix. Plural of, so if there are so many matrices, then the plural of matrix is referred as matrices. Okay, you must have already studied some of the matrices. For example, a matrix A having m rows and n columns is represented in general as A11, A12, dot dot dot, A1n, A21, A22, dot dot dot, A2n, dot dot dot, AN1, AN2, ANN. So these are dot 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 and dot dot dot. So basically these AIJs are the elements, they are referred as element of the matrix. And these are how many rows are here? So 1, 2, dot dot dot, m, let us write them m so that it is rectangular. So AM, AM. So 1, 2, dot dot dot, m. So there are m rows and how many columns? 1, 2, dot dot dot, n. 1, 2, dot dot dot, n columns. M rows and n columns. Equivalently, we write it as Aij, where I varies from 1 to n, m, and j varies from 1 to n. So this is represented in this manner, where I varies from 1 to m and j varies from 1 to n. ऐसे यहाँ पे इसको लिखते हैं AIJ. AIJ कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. In this course, we will be also although writing only real matrices. Okay, that means AIJ हमारा real होगा. So in AIJ, जो पहला इंडेक्स होता है हमारा I, इसको हम लोग बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रो के नंबर को. इसका मतलब ये AIJ है आयत रो, और ये J है, ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. So for example, A12 जो एलिमेंट है हमारा A12, this represents the element in the first row and second column. ठीक है ना? So A12 is entry in the first row, second column. First row, second column का जो एंट्री है उसको हम लोग A12 से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है ना? So here matrix A has m rows and n columns. This is why it is rectangular. If m is equals to n, then
matrix is said to be a स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिसेस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैट्रिसेस होते हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन वेरियस एप्लीकेशंस एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट properties which square matrices has is determinant. Only you can find out the determinant of only square matrices. Okay, all right. So now I will come to the point of system of linear algebraic equations. For example, I will start with an example. Consider these equations: 2x plus y equals to 3 and 2x minus y equals to 1. Some of you might recall your 12th standard. You can write this system of algebraic equations as 2, 1, 2 minus 1 of xy is equals to 3, 1. This is called matrix representation of system of algebraic equations. Here this A matrix is represented as called as coefficient matrix. This is unknown matrix and this is RHS. So AX is equals to B. So what we have done is that we have represented the system of algebraic equations as a matrix equation. So this is called matrix representation of algebraic equation. This is very useful. So this is one among the basic applications of matrices that we can convert system of algebraic equations. They are written in the algebraic form. They can be converted into a matrix form. तो उनको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं. अब what is the advantage अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्या है? तो the advantage comes, आगे का क्या फायदा है हमारा लिखने का? तो the advantage is in finding solutions. कैसे? तो assume अगर मान लो जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, तो suppose if a matrix A is invertible. इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, या ए इनवर्स एग्जिस्ट. सब बातों का मतलब एक ही है, चाहे इन्वर्टिबल बोले, चाहे उसका बोले डिटरमिनेंट 0 नहीं है, चाहे बोले कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. उस केस में देन इन दैट केस जो ax इक्वल्स टू b है, इस पे आप क्या कर सकते हो? दोनों तरफ मैट्रिक्स इक्वेशन है, इस पे a इनवर्स ऑपरेट कर सकते हो. तो a इनवर्स ऑपरेटेड ऑन बोथ साइड. a इनवर्स ऑफ ax इज इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया. ये क्या इंप्लाई करेगा? a इनवर्स ऑफ a टाइम्स x, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिया हमने, ऑफ a इनवर्स b. a इनवर्स से i होता है, i का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम मैट्रिक्स बचेगा, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b. तो अननोन जो यहाँ पे तुम्हारा था x, y,
वो तुम्हें ए इनवर्स बी से पता चल जाएगा। ए इनवर्स का प्रोडक्ट बी के साथ कर दोगे तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं दैट कैन बी फाउंड इफ आई राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन, then using the matrix operations I can find out the solutions. Let us look at this matrix equation. To solve 2 1 2 minus 1 xy equals to 3 1, मान लो हमें ये सॉल्व करना है। Naturally you know that this is matrix A, this is matrix X, and this is matrix B. According to this formulation the solution is A inverse B. The solution is X is equals to A inverse B. So for Ax equals to B, Ax is equals to B, we get X is equals to A inverse B. ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमें A inverse B निकालना है। ओके, सो एम क्या है हमारा? टू फाइंड A इनवर्स। अगर A आपको ये दिया हो तो A इनवर्स क्या होगा? बाय डेफिनेशन हमें पता है कि A इनवर्स क्या होता है? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, कोफैक्टर ऑफ A, उसका ट्रांसपोज होता है और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकालोगे। डिटर्मिनेंट A क्या हो जाएगा? 2 1 2 माइनस 1, उसका वैल्यू क्या होगा? -2 -4। तो डिटरमिनेंट ए आपका आ गया -4। -4 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स आपका इन्वर्टेबल है ना? हेंस मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल एंड वी कैन फाइंड सोल्यूशन। हमें यहां से सोल्यूशन मिल जाएगा जो कि one and only one solution होगा। there are other ways also, but we are not bothering about that one, we are only looking at this particular case। अब हम लोगों को A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू कोफैक्टर ऑफ A। कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ना? corresponding to that is the collection of all minors corresponding to each element -1 to raised power I plus j mij, है ना? So we'll use the formula। तो देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A और ये हम कोफैक्टर लिख रहे हैं मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले 2 का देखो, यहाँ पे 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 2 इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री, जिसकी वैल्यू की -1 टू पावर 1 + 1 दैट इज +1 और मल्टीप्लाइड बाय -1। सो ये यहाँ पे बन जाएगा -1। उसके बाद नेक्स्ट 1 का कोफैक्टर -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 माइनस हो जाएगा और 2 का वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2। सिमिलरली इस 2 का जब आप कोफैक्टर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम, बिकॉज दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 और जब -1 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो ये बन जाएगा +2। सो दिस इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में है 1 अपॉन -4। इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -1 +2। ठीक है, देन फाइनली आपके पास देखो क्या मिलेगा? फाइनली यहां से क्या मिलेगा? A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पहली एंट्री मिलेगी, 1/4, 1/2 दूसरी एंट्री मिलेगी, 1/4 ये एंट्री मिलेगी और -1/2 ये एंट्री मिलेगी। तो ये आपका
ए इनवर्स हो गया, ठीक है ना। अगर ये इनवर्स हो गया तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन यहां से पता चल जाएगा। हेंस जो x की वैल्यू है वो क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 1/4 1/2 -1/2 इंटू बी की वैल्यू यहां से उठा करके रख देंगे 3 और 1, इसका प्रोडक्ट कर लोगे 3/4 plus 1/4 that will give you 1, 3/2 minus 1/2 that will also give you 1। x जो आपका अननोन है वो क्या है, x कामा आई मीन एक्स वाई। तो यहां से कंपेयर कर लो दोनों मैट्रिसेस को, x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, ये आपका सोल्यूशन आ गया। दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ये सब 12th में पढ़ा होगा आपने। All right, all these things you must have already studied in your 12th standard. Yes sir. ओके, तो ये जो इनवर्स से हमने निकाला ये एक तरीका है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग। अभी यहाँ पे देखने में तो लग रहा होगा कि ये हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते, इसमें दोनों को जोड़ देते तो 4x इज इक्वल टू 4 हो जाता, उससे x इज इक्वल टू 1 आ जाता, घटा देते तो 2y इज इक्वल टू 2 हो जाता, y इज इक्वल टू 1 हो जाता। व्हाई डिड आई डू दिस मच ऑफ वर्क? So this is not the particular example which we are doing, rather this is we are trying to understand the method। 10/10 का अगर होगा तो फिर हमारे लिए मेथड ज्यादा इजी होगा अप्लाई करना, क्योंकि इसमें इनवर्स निकाल लिया हमने और इनवर्स निकाल करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी शैल लुक फॉर अनदर मेथड। ओके, अनदर मेथड जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को, उसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। सभी लोगों को याद होगा कि क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा, है ना। क्रैमर्स रूल में क्या होता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी हुई है, ए कोई भी n/n मैट्रिक्स है, नोटिस केयरफुली, हम लोग क्रैमर्स रूल जो अप्लाई कर पाते हैं वो हमारा किसके लिए है, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। x अगर कोई n/1 मैट्रिक्स है इज इक्वल टू b जो कि n/1 मैट्रिक्स है, ax इज इक्वल टू b। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, जहां पे x क्या है, x आपका एलिमेंट्स है, इसमें मान लो x1 x2, अभी तो n एलिमेंट्स ले लिए हमने x, y के बजाय x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और ये कॉलम वेक्टर है तो इसलिए यहाँ पे रो लिख करके उसको ट्रांसपोज कर दोगे तो कॉलम बन जाएगा। सो वेयर x इज दिस, ओके। सो अगर हम क्या करें, d को हम लिखना चाहें इससे डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड di को हम लिखना चाहें ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ai, जहां पे ai का मतलब क्या है, वेयर ai इज मैट्रिक्स a मैट्रिक्स है ai, मैट्रिक्स a इन विच आयत कॉलम, जो उसका आयत कॉलम है, इज रिप्लेस्ड बाय बी। बी मतलब ये जो बी मैट्रिक्स है, आयत कॉलम मैट्रिक्स ए का बी वाले उससे रिप्लेस कर दोगे तो वो डी मिलेगा। यानी फर्स्ट कॉलम का रिप्लेस कर दोगे बी से, बी इज ए कॉलम मैट्रिक्स, अगर फर्स्ट कॉलम रिप्लेस कर दोगे D1 मिल जाएगा, सेकंड रिप्लेस कर दोगे D2 मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर इस तरह से आप जो है ये कोएफिशिएंट्स बना लेते हो तो क्रैमर का रूल बहुत इंटरेस्टिंग है। देन दिस अननोन, ये जो x के जो अननोन एलिमेंट्स हैं n एलिमेंट्स,
एक्स आई, इनका फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन डी। आई कितने सारे हैं, 1 से n तक, 1 से n तक। तो ऐसे करके आप हर एक x1 x2 x3 जितने भी होंगे उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हमारी ये मैट्रिक्स इक्वेशन, इस पे हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। सेम एग्जांपल कंसीडर करने जा रहे हैं हम लोग। 2 2 1 -1, ये तो ए मैट्रिक्स हो गया। एक्स मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे एक्स वाई लिख रहे हैं, इसको x1 x2 भी आप लिख सकते हो, एक्स वाई लिख रहे हैं हम लोग। 3 1 ये हमारा बी हो गया मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देखो, जो ए मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया। तो सबसे पहले तो डी निकालना है। डी का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने निकाला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस वाली स्लाइड में, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालने की अब जरूरत है नहीं दोबारा, कि इसकी वैल्यू आ गई -4। अब हमें डी आई निकालने हैं। यहाँ पे देखो कितने एक्स में कितने कंपोनेंट थे, एन कंपोनेंट थे, तो इसलिए डी आई कितने हमारे हुए, एन डी आई थे। यहाँ पे एक्स में कितने कंपोनेंट हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे डी आई कितने होंगे हमारे पास में, 2 होंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, D1 निकालेंगे। D1 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A1। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे विच इज डिटरमिनेंट ऑफ A1। फिर निकालेंगे हम लोग D2 विच इज डिटरमिनेंट ऑफ A2। अब ये A1 A2 क्या है, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास में हमने क्या कहा A1 A2 को। फॉर एग्जांपल AI, अगर AI मतलब I की जगह पे 1 रख दो। A1 इज अ मैट्रिक्स A इन विच फर्स्ट कॉलम, 1th कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम को B से रिप्लेस करना है। ओके, so this is how we have to do it. Let us see. So let us write the matrix A1 first. A1 is the matrix A in which the first column, ये वाला फर्स्ट कॉलम है 2 2, is replaced by B। तो जो B है 3 1, उसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। बाकी के सारे कॉलम्स को एज इट इज लिखना है, केवल फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है। तो ये हमारा हो गया A1 एंड A2। A2 में क्या करना है, आप सेकेंड कॉलम को, इस केस में ये सेकेंड कॉलम है, इसको 20 रिप्लेस कर देना है, 3 1। बाकी के सारे कॉलम्स को वैसे लिखना है 2 2। ओके, अब यहां से डिटरमिनेंट निकल आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ A1 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 3 1 1 -1। इसका वैल्यू 1 3 3 -1 -4। सेम वे इसकी वैल्यू निकाल लोगे, 2 3 2 1 1 2 2 -3 2 6, दैट इज -4। ठीक है, सो ये वैल्यूज निकलने के बाद में क्या होगा, अब आपको क्रैमर्स रूल लगाना है। वाई क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल के हिसाब से क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, d1 अपॉन डी। और दूसरा वेरिएबल क्या है आपका, y है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 अपॉन डी। एक्स की वैल्यू d1 अपॉन डी, d1 रख दो, d1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन -4। d2 की वैल्यू -4 अपॉन -4। दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1। तो यहाँ से आपका वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। आप सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हो, ये आपके सोल्यूशन हो गए। तो आप चाहे इनवर्स वाले मेथड से निकाला आपने, चाहे इस मेथड से निकाला, दोनों मेथड से देखोगे तो वैल्यू आपकी वही आ रही है। सो इट इज लाइक 1 1। ओके, so this also you must have studied earlier. क्या चल रहा है यहाँ पे, हाउ y इज इक्वल्स टू 1, कहाँ पे भाई, कहाँ पे प्रॉब्लम है। So I hope everything is all right. I'm not sure where the confusion is.
I am not able to read all the chats because of, there are a lot of things which are writing. Maybe towards the end I will clear the question if there are questions. लास्ट वाले मेथड में पूछा है, लास्ट वाले मेथड में कैसे क्या प्रॉब्लम है? इनवर्स में कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये कोई भी दो मैट्रिक्स आपका बराबर होते हैं जब उनकी एंट्रीज बराबर होती हैं। तो अगर ये वाला मैट्रिक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स एक्स वाई है और वो बराबर है 1 1 के, तो एक्स भी हमारा 1 के बराबर होगा और वाई भी हमारा 1 के बराबर होगा। टू मैट्रिसेस आर इक्वल ओनली इफ देयर एंट्रीज आर इक्वल। ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. Matrix Aij is equals to matrix Bij, then Aij must be equals to Bij for all ij. All right. All right. Okay. So these are the two methods which we have studied earlier. इसमें कुछ भी मैंने अभी तक नया नहीं बताया हुआ है. These methods are pretty useful. ऐसा नहीं कि ये methods के साथ में कोई प्रॉब्लम है. ये methods काफी यूजफुल थे, आपने जो और यूज भी किए होंगे अप टू 12th स्टैंडर्ड. You are even now also, if somebody asks you, then you will quickly apply these methods and find out the solution. However, there are certain issues. What are those issues? So one can see here that there are issues that the calculation or computation becomes complicated in both the methods as we have bigger A. What do we mean by bigger A? Bigger A means the number of rows and number of columns of the coefficient matrix. यहाँ पे देख लो, जाहिर सी बात है कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा. दोनों ही का कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा. अभी 2/2 में है तो 4 बार कैलकुलेशन किया, 3/3 होता तो 9 बार आपको कोफैक्टर में निकालना पड़ता, राइट. 4/4 होता 16 बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ता. दैट मीन्स वो कैलकुलेशन आपका बढ़ता जाएगा. डिटरमिनेंट निकालने के लिए और डिफिकल्टी है. सेम वे यहाँ पर अगर इस वाले केस में डिटरमिनेंट निकालना है, 3/3 होगा तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा. 4/4 होगा तो आपको 4/4 का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा. 10/10 हो जाएगा तो इट विल बिकम फर्दर डिफिकल्ट, है ना. वो डिटरमिनेंट निकालने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा करते करते करते, है ना. तो ये दोनों के दोनों मेथड्स में अगर n का नंबर, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है और नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है, अगर उनकी संख्या बढ़ जाती है, देन द मेथड बिकम्स डिफिकल्ट. साइज, दैट मींस बिगर साइज, बिगर ए बिगर होने का मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ n हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं. 2/2 के मैट्रिक्स में देखो क्या है, दो वेरिएबल्स है ना, x एंड y. तो n हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी है और n ही हमारा क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन. हम चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर है. तो इस केस में क्या होता है, this calculation becomes very very difficult because we have to do a lot of effort in order to find the answer via the method which we have discussed. दो मेथड जो हमने अभी तक डिस्कस किए, via those methods you can figure out that there will be problems. तो क्या उसका कोई वे आउट है? प्रॉब्लम तो हो गई, ठीक है. तो इज देयर ए वे आउट? वे आउट का मतलब क्या उस चीज का कोई सोल्यूशन है? तो उसका आंसर है यस. और वो मेरा नहीं है सोल्यूशन. द आयलर हैज गिवन दिस सोल्यूशन एट ऑलमोस्ट सम 200 years back or so. तो वो, sorry, Gauss, not Euler. Gauss has given that solution
some 200 or 300 years back. So long ago, this method was provided. So the method is referred as Gauss elimination method. ठीक है, इसको बोलते हैं Gauss elimination. So you have to, so I will explain this method via help of an example. कंसीडर करिए हमारी ये अलजेब्राइक इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6. तो ये हमारी मान लो एक इक्वेशन हो गई. 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 13. ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई. और 3x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल्स टू 20. ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई. सपोज हमें ये तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है. जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन सी दैट कि इसका सोल्यूशन जो है x इज इक्वल्स टू 3, x1 इज इक्वल्स टू 3, x2 इज इक्वल्स टू 1 और x3 इज इक्वल्स टू 2 है. इसको सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो यहां से तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, पहली इक्वेशन को मान लो हम लोग R1 रिफर करें, दूसरी इक्वेशन को मान लो हम लोग R2 रिफर करें और तीसरी इक्वेशन को अगर हम R3 रिफर करें. इन योर चाइल्डहुड डेज यू मस्ट हैव स्टडीड दिस मेथड ऑफ एलिमिनेशन. तो हम लोग क्या करते थे, उसमें सबसे पहले इक्वेशंस को एलिमिनेट करते थे. तो यहाँ पे मान लो हम क्या करते हैं, x1 को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से मान लो हम एलिमिनेट करते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 में से, दिस इज द इंट्रोड्यूसिंग आइडिया बाय गॉस, R2 में से 2R1 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x1 एलिमिनेट हो जाएगा. और R3 में से अगर हम लोग 3R1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे R1 है, R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस 3R1, यानी R2 में से हम अगर 2R1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये 2x1 एलिमिनेट हो जाएगा. और R3 में से 3R1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 3x1 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. दिस विल गिव यू, अगर ये दो ऑपरेशन हम यहाँ पे कर देते हैं, पहली इक्वेशन पे तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो पहली इक्वेशन तो हमारी ऐसी रहेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6 ही बना रहेगा. इसको हम क्या करें, आप 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे तो 0 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या बचेगा, x2 माइनस 2x2, x2 माइनस 2x2 विल बी, ये x2 है, माइनस x2, 3x3 माइनस 2x3, वो क्या बचेगा, प्लस x3. 13 माइनस 6, 2 टाइम्स 6, 13 माइनस 2 टाइम्स 6, 1 बचेगा. R3 में से 3R1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. 3x2 माइनस 3x2 वो भी 0 हो जाएगा. 4x3 माइनस 3x3, x3 बचेगा. और 20 माइनस 18 यहाँ से 2 बचेगा. ये समझ में आया सभी को? So this is how after elimination, so you have eliminated x1, x2, x3. Is this clear how I did this one? Correct. So now after doing this, so this was the method given by Gauss. So the idea of Gauss was that you have to perform this process multiple times, so that what happens, that you get the number of variables in the increasing order. So लास्ट वाले में 1, उसके बाद वाले में 2, इसके बाद वाले 3, ऐसे ऐसे करके हो. तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबकी वैल्यू यहाँ से x3 की उठा लो वैल्यू. तो अगर x3 देखोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले x3 इज इक्वल टू 2, ये तो पहला आ गया. x3 अगर पता चल गया आपको तो यहाँ से x2 पता चल जाएगा. तो x2 क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज 1. अब x1 x2 पता चल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 और सॉरी x2 x3 पता चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज 3, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 3. तो आपने क्या प्रोसेस अपनाया, आपने सब्स्टिट्यूशन करा हुआ है. ठीक है ना, यू हैव मेड द सब्स्टिट्यूशन.
सब्स्टिट्यूशन, बट विच काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिड यू डू? आपने लास्ट वाली इक्वेशन से शुरू किया, तो इसलिए हम इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन. So after elimination, so first you do the elimination and then you do the backward substitution to get solution. So this is the idea of Gauss, is that first you do the elimination of the variables and then you do the backward substitution. Okay. अब ऐसे अगर इक्वेशंस लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें. तो द आइडिया ऑफ द गॉस इज दैट कि भाई इन इक्वेशंस को, जो हमने अभी इक्वेशंस लिखी हैं, इन इक्वेशंस को क्या करो, आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो. ठीक है. सो आई शैल राइट these equations in matrix form now. Write the equations in मैट्रिक्स फॉर्म. सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं. फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 1 2 3, कोएफिशिएंट ऑफ x1 1 2 3, कोएफिशिएंट ऑफ x2 1 1 3, कोएफिशिएंट ऑफ x3 1 3 4, x1 x2 x3 equals to 6 13 20. ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन. अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है उसके रेफरेंस में कैलकुलेशन कर रहे हैं ना. ये एलिमेंट है. इस एलिमेंट को एक्चुअली हम एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि पिवट है हमारा, पिवट एलिमेंट. इट इज रेफर्ड एज पिवट एलिमेंट. और पिवट के रेफरेंस में हमेशा सारे लोगों को जीरो करते हैं. इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे. तो क्या करेंगे, पिवट जो भी है उसको सब्सट्रैक्ट सुटेबली बाकी के रोज से सब्सट्रैक्ट कर दो. ओके. सो वी परफॉर्म द एलिमिनेशन, वी परफॉर्म elimination with help of pivot. तो जो pivot है उसके हेल्प से हम लोग परफॉर्म करते हैं. कैसे करते हैं यहाँ पे, that is very easy. We have already seen this one. In this case x1 x2 x3. So first row remains the same 1 1 1. सेम ऑपरेशन जो अभी हम लोगों ने लिखे थे, R2 माइनस 2R1 कर देंगे. तो R2 माइनस 2R1 कर दोगे तो यहाँ पर 2 माइनस 1 0 हो जाएगा. 1 माइनस 2 इज माइनस 1. वन माइनस 2 इज माइनस 1 and 3 minus 2 is plus 1. और यहाँ पे फर्स्ट रो 6 है, 13 माइनस 12 दैट इज प्लस 1. फिर सेकेंड ऑपरेशन क्या करोगे, R3 माइनस 3R1 कर दोगे. R3 माइनस 3R1. तो R3 माइनस 3R1 करेंगे तो हमारा फर्स्ट ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा. 3 माइनस 3 टाइम्स 1 ये भी 0 हो जाएगा. 4 माइनस 3 टाइम्स 1 ये आपका 1 आ जाएगा. और 20 माइनस 3 टाइम्स 6 तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा. So this is what matrix equation you will get. So look at that, you are getting the same thing. Only thing the difference here is that these expression was written in x1 x2 x3 and these equations are written in the matrix form. तो ये वाली इक्वेशन हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म है. ठीक है ना. नोटिसेबली ये जो मैट्रिक्स फाइनली हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे, ये मैट्रिक्स एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है. सो अगर इस केस में तो बहुत जल्दी हो गया, बट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमारा है, दैट रिड्यूसेस टू, जो ऑपरेशंस आप करोगे ना सारे रो ऑपरेशंस, केवल रो ऑपरेशंस अलाउड है आपको. ठीक है ना, ओनली रो ऑपरेशंस आर अलाउड.
रो ऑपरेशन जैसे करोगे वैसे ही क्या होंगे, दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल रिड्यूस टू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सब लोग जानते होंगे शायद, अगर नहीं जानते हो तो मैं बाद में भी डेफिनेशन भी बताऊंगा। अपर ट्राइंगुलर का मतलब होता है कि डायगोनल के नीचे जितनी एंट्री है वो सारी जीरो होती है, बाकी एंट्री कुछ भी हो सकती है, बट डायगोनल के नीचे जो एंट्री होती है वो सारी की सारी जीरो होती है, तो उसको अपर ट्राइंगुलर बोलते हैं। ठीक है, इट मींस द पॉसिबल नॉन जीरो एंट्रीज कैन बी ओनली इन द अपर ट्राइंगुलर, दैट इज रेफर्ड एज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. So in the Gauss elimination method, if you perform the elimination, the matrix automatically converts into upper triangular matrix. Okay. And once it is converted into upper triangular matrix, you can naturally see that then the number of elements in the expression, like here, they will be in the increasing sequence, and therefore backward substitution works. So whatever I have discussed so far, clearly it can be summarized with the help of one example where we will have to do a little bit of extra work, and let us take this an example. Okay, so ये example हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं, बहुत interesting example है. So suppose I'm directly writing now. Suppose we have to solve algebraic equation को हम मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख रहे हैं. एग्जाम में आपको वो या रियल लाइफ में आपको जो है वो अलजेब्राइक इक्वेशन मिलेंगी, आपको फिर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आई एम राइटिंग देम डायरेक्टली हियर. ऑल राइट, 1 1 1 3 3 4 2 1 3 x1 x2 x3 is equals to 6 20 and 13. ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपने एक ही स्टेप किया और आपको हर बार ऐसे मिलेगा. You may have to do a lot of work in order to reach to this upper triangular matrix. That's why I am giving you this example to show that you will not get upper triangular matrix just like that. You may have to do little bit of work. ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, पिवट. So here the pivot is this element. ओके, अगली क्लास में जब होगा तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे पिवट के बारे में. आज के लिए ऐसे समझो कि ये पिवट हमारा है. ठीक है, हम लोग इसको भी मान के चलेंगे कि ये पिवट है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कुछ भी. फिर हमने क्या बताया कि सेम कॉलम में इन लोगों को जीरो करना है. तो कैसे जीरो होगा, सिंपल से ऑपरेशंस आपके हैं. R2 में से 3R1 घटाना है और R3 में से 2R1 घटाना है. You have to keep in mind that all the operations should be with reference to R1 only. जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हो ना R1 के रेफरेंस में, तो R2 में से R1 घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे R3 में से 2R1 घटाओगे तो जीरो हो जाएगा. सो देन द रिड्यूस मैट्रिक्स देखो, इसके बाद में यहां से यहां लिख लेते हैं सारा कुछ, x1 x2 x3, इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. R1 1 1 1 6, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी. R2 में से 3R1 घटा रहे हैं तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा. 3 माइनस 3 यहाँ पे देखो तो जीरो हो जाएगा, और 4 माइनस 3 तो प्लस 1 हो जाएगा, और 20 माइनस 18 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. फिर 2 माइनस 2 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 2 यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, एंड 3 माइनस 2 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड 13 माइनस 12 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. ठीक है, अब हमें तो देखो क्या बनाना है, यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है ना. तो लोअर ट्रायंगुलर के लिए यहाँ पे जीरो होना चाहिए था, यहाँ पे ना जीरो होना चाहिए था. करेक्ट. तो अब इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे 0 आ रहा है इस जगह पे, क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाना है ना इस जगह पे, लोअर ट्राइंगल बनाने के लिए 0 जो है इधर पे होना चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस वाली रो को इस वाली रो के साथ में स्विच कर दें, R3 के साथ में R2 को स्विच कर दें, तो देखो वो -1 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री मिल जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 एंट्री मिल जाएगी। देन इन दैट केस ये देखो तो क्या बन जाएगा, 1 1 1 0 -1 1 0 0 1 x1 x2 x3 6 2 1. I don't know if some of you have noticed it or not. It is again when you do the backward substitution. Backward substitution will reach you to x1 is equals to 1, x1 is equals to 3, x2 is equals to 1 and x3 is equals to 2. बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने पे आएगा। पता नहीं किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया, ये सेम इक्वेशन है, यही वाली इक्वेशन है। अगर देखोगे तो ये मैट्रिक्स में बस हमने क्या किया हुआ था, सेकेंड और थर्ड रो को आपस में बदल दिया था, सेकेंड और थर्ड रो को आपस में बदल दिया। दैट्स वाई हमें जो है लोअर ट्राइंगल करने में फर्दर ऑपरेशन करने पड़े। तो आपको कुछ भी ऑर्डर में इक्वेशन दी हुई हो सकती है एंड यू मे हैव टू वर्क डिफरेंटली, है ना, एंड इन ऑर्डर टू गेट दैट यू मे हैव टू फाइंड इट डिफरेंटली। एक और एग्जांपल कर देते हैं, लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। सो कंसीडर दिस इक्वेशन नाउ, x1 plus x2 plus x3 x1 plus x2 plus x3 equals to 3, x1 plus 2x2 plus 3x3 equals to 6, x1 plus 3x2 plus 2x3 is equals to 6। सपोज क्वेश्चन ये है कि सॉल्व करिए इसको गॉस एलिमिनेशन से, सॉल्व इट यूजिंग गॉस एलिमिनेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने बताया अभी कि क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ax is equals to b, इस फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। 1 1 1 1 2 3 1 3 2, x1 x2 x3 3 6 6। so everybody should be able to write it in the matrix form. After that you perform on this operation. so सबसे पहले यहाँ पे पिवट सेलेक्ट कर लो, इस जगह पिवट देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 पिवट हो गया। इसके रेफरेंस में सबको 0 करते हैं। तो परफॉर्म द ऑपरेशंस, क्या करना पड़ेगा, R2 में से R1 को और R3 में से R1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट विल इट गिव राइज टू, इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी 1 1 1। फर्स्ट रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ये इनको भी लिख लिया, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड रो में देखो क्या हो गया, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3। यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 3 गया 3। okay, so this is what you will get. Now you see it is not as of now it is not the lower triangular matrix, sorry, upper triangular matrix, and I mean the lower to diagonal entries are not 0. So what should I do? So now what I do here is that I will forget about the first row. Now I'll move to the second row, and the entry in the second row, second column, I will
call this element as pivot. Now I will make this entry as pivot. अब इसको पिवट बना लिया तो इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज को जीरो करना है, ठीक है ना, इसके नीचे वाली सारी एंट्री। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए ऑपरेशन, आपको R3 में से 2R2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इफ यू डू R3 माइनस 2R2 तो 1 1 1 फर्स्ट रो तो ऐसे रहेगा x1 x2 x3। ये पूरी एल्गोरिदम मैं क्लास में, जो क्लास होगी अगली क्लास, उसमें पूरी एल्गोरिदम प्रॉपर तरीके से लिख करके बताऊंगा। 0 1 2 इसमें तो कोई चेंज नहीं है, आप केवल क्या ऑपरेशन कर रहे हो, R3 में से 2R2 घटा रहे हो। 0 में से 0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में से 2 टाइम्स 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 2 टाइम्स 2 जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 टाइम्स 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू सी इट हैज बिकम upper triangular matrix. Once it has become upper triangular matrix, then here you can apply and this will give you 3 times x3 is equals to 3. That means x3 is equals to minus 3 times x3 is equals to minus 3. That means x3 is equals to plus 1. x3 की वैल्यू यहाँ पे प्लस 1 रखोगे तो यहां से क्या मिलेगा, x2 0 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 3। x3 की वैल्यू 1 है तो x2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, यहां से क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट x2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या रखोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3। x1 x3 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 भी 1 आ जाएगा। ये कर पाओगे सारे लोग। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले x3 की वैल्यू मिली, फिर x2 की वैल्यू मिली, फिर x1 की वैल्यू मिली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, x1 is equals to 1, x2 is equals to 1, x3 is equals to 1. So by getting the backward substitution, by applying the backward substitution, we get that the solution of this system of algebraic equation using Gaussian elimination method is I'm in a class. The solution of this system of algebraic equations is actually 1 1 1. किसी को कुछ डाउट हो, बाकी का as I told you, rest of the algorithm I will discuss in our next class. Backward substitution repeat कर दो, okay? So backward substitution में आप क्या करते हो, you use this last equation. I mean, let me erase this everything. So now what we will do is that we'll, as I told, we'll apply backward substitution. तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाली इक्वेशन से, ये मैट्रिक्स इक्वेशन से आप अलजेब्राइक इक्वेशन बनाना तो आता होगा ना। सबसे पहले क्या करो, लास्ट रो को अननोन वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 टाइम्स x1 प्लस 0 टाइम्स x2 प्लस -3 टाइम्स x3। पहली इक्वेशन क्या आएगी, -3x3 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या है, -3। ये तो आता होगा ना सबको, अगर ये आता है तो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, x3 इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तो x3 हमारा +1 मिल गया, आगे वाला हम इस वाले में लिख लेते हैं। अब देखो क्या करा हमने, ये तो हमारा मिल गया लास्ट वाली क्वेश्चन से। अब लेट मी मेक इट लिटिल बिगर, ओह प्रोबब्ली इट वोंट बी विजिबल। सो यहाँ पे देखो क्या है, अब सेकेंड इक्वेशन को आप जो है अननोन से मल्टीप्लाई करोगे, 0 टाइम्स x1 1 टाइम्स x2 प्लस 2 टाइम्स x3, सो दिस विल बिकम x2 प्लस 2 टाइम्स x3 इज इक्वल्स टू 3। ये दूसरी रो से आपको मिल रहा है, बैकवर्ड जा रहे हैं ना, सबसे पहले लास्ट रो, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट रो, ऐसे करके आपको करना है। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू लेकिन आपको पता चल गई अभी, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस 2 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 3 implies that x2 is equals to +1.
x2 भी आपको पता चल गया। अब थर्ड रो आपका यूज हो गया, सेकेंड रो यूज हो गया, बाकी का लास्ट में क्या बचा, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का वैल्यू देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। इसमें से आपको x2 की वैल्यू पता है, x3 की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू +1 है। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 implies that x1 is equals to 1। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। सो यू हैव गॉट योर आंसर फाइनली आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, यही मैंने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ था। सो यू गॉट योर आंसर, x3 इज इक्वल टू 1, फिर आपको मिला आपको x2, तो x2 की वैल्यू भी 1 है, और फिर आपको मिला x1 की वैल्यू भी आपकी 1 है। सो x1 x2 x3 ये आपकी 1 वैल्यूज है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Is matrix remains same after exchanging two? Which questions I can see there. Okay, sir, B portion will not change. No, B will change. Now B is changing. You see, every time you make the row up, that's why I told you, you are only allowed to do the row operation. Once you do the row operation, everything will change. That's why I gave you the example with the help of this first. So here, if you notice carefully, अगर R2 में से हम R1 का कुछ भी मल्टीपल घटाते हैं तो क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी बदल रहा है R2 का, और राइट हैंड साइड भी 13 के बजाय 1 हो गया ना। So here, this whole matrix is changing, and that's why you should understand the correspondence between the operation which I have done here. बीच में थोड़ा सा जो है वो डिस्कनेक्शन हो गया था। अभी अभी ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर, कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन और वो इक्वेशन दोनों हमने एक साथ लिखी हुई है, कि अलजेब्राइक इक्वेशन में अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, R2 में से हम R1 को घटा रहे हैं, तो अगर हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड भी बदल रहा है R2 का, और राइट हैंड साइड भी बदल रहा है, तो द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विल चेंज, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड हियर इन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एज वेल। So both the coefficient matrix and the B matrix will change when you perform the row operation. That's why I'm telling you only row operations are allowed, because if you apply column operation, then your right hand side will not change, and which will be wrong, because here when you apply the operation, your both sides are changing. So you are not allowed to use any column operation. You can only use row operations. Okay. रो एंड कॉलम एक्सचेंज करने पे एक माइनस साइन भी आता है ना? नहीं, कोई माइनस साइन नहीं आता है मैट्रिक्स में, अगर आप रो या कॉलम एक्सचेंज कर रहे हैं। हियर वी आर नॉट बेसिकली डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज, इफ यू नोटिस केयरफुली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज दैट वी आर परफॉर्मिंग आवर ऑपरेशंस। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे मान लो R2 और R3 को बदल दूं अभी, इस वाले R2 और R3 को, तो क्या होगा, x3 ऊपर चला जाएगा, -x2 + x3 नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या, क्यों साइन चेंज होगा? वो साइन चेंज तब होता है जब आप डिटरमिनेंट में आप रो ऑपरेशंस करते हो, दैट द साइन डज नॉट चेंज व्हेन यू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अगर किसी ने RREF पढ़ा होगा, रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, तो आपको पता चलेगा कि उसमें रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म करने पर, आपके रो ऑपरेशंस करने पर, उसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। और क्या क्वेश्चन है?
In case of lower triangular matrix, we use forward substitution, correct? If there is any lower triangular matrix, then you will have to use the forward substitution. But in the Gauss elimination method, this is how it is done. In the Gauss elimination method, we don't go for lower triangular. I mean, we eliminate the below, the entries below the column. Entries in the same column below the pivot element, not above the pivot element. So we are choosing the pivot in the first row. That's why we don't do anything. So हमें वो गॉस में वो नहीं मिलेगा. मेरे को लगा हेडफोन खराब. अच्छा, ठीक है. All right. I need to revise 12th. Naturally, we always assume that there is something which you have already studied, and therefore we won't be teaching you. Otherwise, तो हमें एक और एक दो सिखाना पड़ेगा. तो जानते हो, फिर तो कैसे सिखाएंगे 40 लेक्चर में हम आपको एक और एक दो, है ना? थोड़ा सा तो आपको कुछ स्टडी पहले वाला याद रखना ही पड़ेगा. Otherwise, you go and revise it. So in the entire process, you must have noticed one thing, and what is that thing? Is that this x1, x2, x3, this x1, x2, x3, we are writing again and again and again unnecessarily. And if we have an understanding that this is always there, so we can convert this whole thing into an interesting system, okay, which we write as augmented matrix. उसको हम लोग बोलते हैं कि वो augmented matrix है. A system of equations ax is equals to b can be represented, हम लोग उसमें से x को छोड़ सकते हैं, by augmented matrix. ये सिंबल होता है उसका a, एक बीच में बार बनाते हैं, और b. सो दोनों b, ये बार जो है पार्टीशनिंग है वहां पे. इससे क्या है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. एग्जाम्पल के लिए 1 1 1 1 2 3 1 3 2, ये जो हमने शुरुआत में एग्जाम्पल लिया था, x1 x2 x3 is equals to 3 6 6, the example which we have chosen just now. This matrix equation, I can simply skip it. So this can be written as 1 1 1 1 2 3 1 3 2, ये बार यूज करेंगे 3 6 6. जैसे ही बार यूज करते हैं वैसे ही ये अंडरस्टूड हो जाता है कि ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है. ओके, दिस मस्ट बी अंडरस्टूड दैट दिस इज आवर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A and this is our right hand side matrix B. Okay, and this matrix is referred as augmented matrix. इसको हम लोग बोलते हैं augmented matrix. All right, and this is helpful because I don't have to write the entire expression and again and again and again. So this is very, very helpful. Okay, so we are almost towards the closure of this session. Let me discuss a little bit more. So system of equation. By system of equations, I mean system of linear algebraic equation. System of equation is represented as ax is equals to b. So consider this equation. If the right hand side matrix is 0, identically 0, मतलब सारी की सारी इसकी एंट्री 0 होती हैं, then this system of equations ax is equals to b, then star is called, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस. तो इस सिस्टम को बोलते हैं कि ये होमोजीनियस सिस्टम है. होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये पढ़ा होगा पहले कभी. सिस्टम ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस में अगर राइट हैंड साइड 0 होती है तो उसका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है.
उसका जीरो एक ऑलवेज सोल्यूशन होता है, हमेशा एक जीरो सोल्यूशन होता है, उसके अलावा कुछ और नॉन जीरो सोल्यूशंस भी उसमें हो सकते हैं। तो जीरो सोल्यूशन उसका बाय डिफॉल्ट एक सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर मान लो क्या हो कि ये हो रहा हो फर्दर, if the coefficient matrix is invertible, डिटरमिनेंट जीरो हुआ मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसका एग्जिस्ट करेगा तो देन आप ए इनवर्स को ऑपरेट कर सकते हो इस पे, मैट्रिक्स ए पे। देन आपको बताया था ना कि ax is equals to b will be converted into x is equals to a inverse b. However, b is a zero matrix, right? So this will be equals to 0 since b is equals to 0। क्योंकि b आपका 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो होमोजेनियस इक्वेशन में केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा। तो therefore if a is invertible, then the system of homogeneous equations has only trivial solution। ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका केवल होगा, मतलब जीरो सॉल्यूशन होगा उसका केवल, ठीक है ना। दैट द ओनली पॉसिबिलिटी हियर, that if b is identically 0 and a is invertible, then in that case matrix equation ax is equals to b has only trivial solution, ठीक है ना। तो ये तो वन पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, if at least कम से कम at least one entry in b is not 0, that means b is not identically equals to a zero matrix, then star is called, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। ax is equals to b को हम लोग बोलते हैं ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। और फिर उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो हियर इन दिस शेड्यूल ऑफ लेक्चर्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी शैल always consider non-homogeneous system of equations so that we get solutions which are non-zero solutions, okay। All right, so I will stop here today, and in the next class I will discuss this algorithm of Gauss elimination method. So this is where I will stop today, and if you have a questions you can ask me and I will address them. I think some of you might have some question, so we will address them। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ जीरो सॉल्यूशन, उसका उसमें और कोई सॉल्यूशन देखो, अगर राइट हैंड साइड जीरो हो गई तो क्या हुआ, ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखो। सपोज करो राइट हैंड साइड इसमें 366 के बजाय 000 होता, तो एक तो सॉल्यूशन इसमें x1 is equals to 0, x2 is equals to 0, x3 is equals to 0 है, क्योंकि सबको जीरो रख दोगे तो राइट हैंड साइड जीरो आ जाएगा। तो नेचुरल है, उसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और अगर इसका डिटरमिनेंट, यू कैन चेक दैट वन, इसका डिटरमिनेंट देखोगे तो नॉन जीरो आएगा। तो चूंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, और इसका राइट हैंड साइड जीरो कर देंगे तो उसमें क्या होगा, जीरो के अलावा और कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, केवल जीरो ही एकमात्र सोल्यूशन है जो हो सकता है। तो जीरो तो उसमें हमें बिना सॉल्व करे हुए मिल रहा था, तो अगर इसलिए बोलते हैं कि उस तरह के केस में वो ट्रिवियल है, दैट सोल्यूशन इज ट्रिवियल, दैट विल ऑलवेज बी देयर। ऑलराइट।
unique solution is not referred as trivial solution. Trivial is the solution which is by default which is there. For example, the zero solution is always there for a homogeneous equation. If equation has a right hand side as 0, then लेफ्ट हैंड साइड में वो जीरो रखने पर तो वो हमेशा जीरो ही जीरो आएगा ना, क्योंकि जीरो रखने पर तो सब कुछ जीरो आ जाएगा. दैट मींस द जीरो सॉल्यूशन इज रेफर्ड एज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन हियर. फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव स्टडीड ट्रिवियल सबसेट्स, जैसे एम्प्टी सेट और सेट खुद किसी भी सेट का सबसेट जरूर होता है, तो यार दे आर रेफर्ड एज ट्रिवियल, है ना. उस तरह से मतलब थिंग्स व्हिच आर दे आर फॉर श्योर. आई थिंक इट्स ऑल राइट सर. कल के लिए क्या पढ़कर आए? सो मोस्टली आई थिंक वट एवर वी हैव स्टडीड टुडे, बस यही वाला सारा कुछ आप रिवाइज कर लीजिएगा कल के लिए, है ना. और कल हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे, तो वो थोड़ा सा पता. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, everybody should know how to multiply two matrices. Okay, so that part we must understand. If there is a matrix A, matrix B, how to multiply matrices, how to equal, how to consider that two matrices are equal, that must be understood by with everyone. Sir, वो आता है अच्छे से. Very good. नहीं, I don't know because somebody was telling ना, so some things you might have forgotten. It's okay. Forgetting is not a big issue. All right, so I'm stopping the recording very first. We can still discuss things. Class